say to download, I guess. Now, select Buildbox Classic and download the free version. Download for Windows or download for Mac, whatever it is there for you. And simply save karo and you will be able to install the software. As simple as that. And yeah, you also need to sign up in your Buildbox account to download it. I guess most of you have already downloaded it. So should we move forward? Please be interactive. उसके बिना मजा नहीं आएगा. Yes. Yes. Great, great. ठीक है. So let's go ahead and open Buildbox Classic. It's on my my home screen. Double click on it and Buildbox Classic will open. थोड़ा वेट करते हैं. चल जाओ भैया, चल गया. स्लो कंप्यूटर यार, क्या करें. ठीक है. So here's a Buildbox का initial screen. So it's a relatively very simple screen. Nothing too fancy going on here. I'll go ahead with each and every minor UI detail ki, what each and everything is supposed to do. Starting from the very top, you'll see there's a create new button that will be used for creating our new games. Below it, if you want to upgrade your Buildbox version to get in more features and all that stuff, I'll tell you more about the features afterwards. So you can simply upgrade it. And yeah, you can upgrade your Buildbox version. Currently, I'm also using the free one. So okay, it is what it is. Then there is Open Recent tab. Here, all your games that you have made using Buildbox will be shown basically. And you can open a project from this Open Project button. Then there are some tutorial videos. You can use a sample game demo or a platformer demo to see how the games are made in Buildbox. And there is some news about kya hai Buildbox and all that stuff. Further, there is this update button that will be telling you if there is any updates available for the software or not. So relatively very simple intro screen. Any questions is there? नहीं होंगे, I guess. Great. So ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे and we'll straightly move towards building a new game. So simply you need to click on this create new button. I guess you all will be following me. So I'll go very slow and I'll give you a demo on how to make a simple game. Let me show you the demo of the game first. क्या बोलते हो? So this is a simple game that we'll be making. I'll not go into कि क्या है अभी ये. Just click on play. And this is a game. There is this rocket. उसके पीछे से कुछ पता नहीं smoke निकल रहा है, I guess. And we need to avoid these platforms to basically go ahead. बहुत simple game है. And nothing too much fancy, but still, you can build a lot of stuff using Buildbox. And moreover, you can publish this thing on any of your platforms. So that's a good thing. So this is what we'll be making. Not exactly this. थोड़ा सा इससे ज़्यादा. ये तो बस एक demo सा था. So yeah, let's click on create new. Please मेरे साथ करना. Just to मतलब easy रहेगा तुम्हारे लिए सीखना. So once you click on create new, you will be getting a new screen which will be titled as creator. And the creator screen has a lot of game types that you can choose. These are pre-built game types that you can use to make some amazing 2D and isometric games. So what is isometric? Google search करना. बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है. I'll not cover that. But yeah, you can hover on each and every game type to see what that game is all about. So there is this wall jump, wall reverse, zigzag thing, and a lot of stuff. So yeah, these games are really very cool. You can make your own game type as well in Buildbox, or you can use these pre-built game types and make your custom game. So what we'll do is we'll start with this default portrait template. You can use default landscape as well if you wish to make some different kind of game, and any other template basically. So just select default portrait to make
our demo game maybe. And then in the basic setting, what you want the score type. The score type is basically the highest score that is shown on the game in the games basically. So it can be the distance, the number of coins that your character got, number of points the character scored, best distance, and all that stuff. So to make it simple, let's keep it on session distance as our scoring type. Then we have world settings. So world is basically the entire game. So the game should be, there are two types basically, a single world game or a multi-world game. So what single world and multi-world means? Single world is like there is only one player screen, and in that only everything will be going on. Simple example is Subway Surfer. So once you click on play button in Subway Surfer, an endless runner will start, and you just need to move that character here and there, and that character will be like move karega, and you will be scoring good points. So that is an example of single world game. If we talk about multi-world game, multi-world is like there are levels basically. So example of a level-based game can be koi bhi le lo yaar. I don't know any hyper casual Candy Crush. Candy Crush, exactly. So Candy Crush is a multi-world game. It has various levels that you need to complete in order to move forward. So that is a multi-world game. So again, for simplicity, we'll be using single world games. We'll be creating a single world game and the world end action. So it is like when you want the game to end, either you can make it endless कि यार कभी end नहीं होना चाहिए जब तक player खेल सकता है, let him play. And the other thing is end scene. Like if there is any particular situation when the player reaches, the game should end. इसका कोई sense नहीं है to make a end scene single world game. So why not make an endless game? Any doubts still here? कुछ भी? No. How many people are No. here? 37. Okay, thank you for your response. फिर इसके बाद यार there is this menu setting sort of thing. So menu setting is basically all the different UI components. So what UI component is? So once you start any game, maybe Candy Crush or maybe apna Subway Surfer. So you see that there is a game over screen when you are killed by someone or something happens. The game is over. Exactly. So that is a menu screen. Here, जब your character dies, it should move to a game over screen, and then you can give an option to pause your game. So again, in Subway Surfer, you can see on top left or right there is a pause ka button. So once you press it, the game will pause. So that is a pause button. Then there is coin shop. So each and every game has in-game currency basically to buy some additional characters, different skins, or things like that. So the same role is played by coin shop. So you can create some in-game currency using coin shop, and there is some info if you want to add some information about your game or your developer or your game house or anything. So you can add it in the info, or about your game, how to play this game. You can add it in the info menu. So I'll not go into the coin shop or info thing because they're relatively advanced UI components. Coin shop is advanced, info is very simple. So let's not make it confusing and just select the pause and game over setting, and we are good to go. Let's keep the name as, suggest करो कोई name अपने game के लिए. Let's see, तुम क्या suggest करोगे? Any name for our game? Zingy Let's. हाँ? Zingy Zangy. Spell it out. ये रखते हैं चलो. Zingy Zangy. ठीक है? No, Zingy. Z Spell कर दो. ZINGY. Z है. अच्छा, वही है. Zangy. हाँ ठीक है. Zingy Zangy कर देते हैं. ठीक है. ठीक है. So any doubts still here? कोई भी doubt है कुछ भी है, let me know. एड्स लगा सकते हैं हम इसके अंदर से गेम्स के. वही तो इन्होंने गेम खेला है अपने साथ. गेम वालों ने गेम खेला है. We can use ads. Paid version के अंदर you can add your ads. But अगर देखते हो तुम in the free version also they are using these
मतलब कुछ कर रहे थे ये लोग, 30% revenue to you. They are using this AdMob monetization. It is coming soon. So ठीक है, free version में भी you can add the ads, but you will get 30% revenue in that. If you use और this ये pro वाली गेम्स version, प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं? exactly, you can add them on Play Store. So I'll let you know कैसे करना है वो. उसके लिए थोड़ा Android dev आना चाहिए, but ठीक है, बता देंगे वो भी, no worries. एक्चुअली इसमें जैसे टेम्पलेट्स है, सो इट विल नॉट बी कॉज कॉपीराइट स्ट्राइक और No. व्हाट. No copyright strike. So the thing is, these are the templates. All you need to do is, not all you need to do, but you need to make some changes in these templates. Like these are the starter game packs. एकदम simple चीज़ है ये, nothing too much fancy. You need to add your own graphics, you need to add your own logic some place, and तभी you can add these on Play Store. Otherwise, obviously बात है, Play Store will reject it. Copyright issue बहुत ज़्यादा है आजकल Play Store पे. भैया ओपन वर्ल्ड बन जाएगा इससे? Nope. ओके. For that you need Unity or something. टेम्पल रन और ये सबवे सर्फर्स जैसे गेम्स हैं वो भी इसी से बने हैं? Not exactly this. Buildbox Classic generally makes these 2D games, and Temple Run, Subway Surfer, they are 3D kind of things. 3D games basically. So you can use Buildbox. अनरियल से बने Buildbox. हैं शायद. ओके. वो लोग उन्होंने Unreal से बनाया, but let me complete. So you can use Buildbox 3 to make all those games, because Buildbox 3 uses 3D modeling and all that to make 3D games basically. So वो थोड़ा advanced हो जाता है, and 3D modeling is थोड़ा tough basically. So why to go towards tough side? एक बार easy सीख लो ना पहले, है ना? उसमें एनिमेशंस और ये सब जी. डिजाइन करने पड़ते हैं. बिल्कुल. So you can make 3D games as well using Buildbox 3, but let's start with 2D. उसके बाद 3D चलेंगे ना. ठीक है. Bro, you are recording this conversation, right? Are you uploading this one in any site, like on YouTube channel or anywhere? Yeah, we'll be sharing these recordings to you. You will get the link of the recording. Don't worry. ठीक है. Okay. Okay. Any other questions, or should we move forward and click on create? No questions. So simply just नामकरण कर दिया अपने गेम का, Zingy Zangy, as suggested by you. We selected default portrait as our template, game type, session distance as a scoring metric, game type is single world, endless runner, and we will be using a pause and game over screen as well. So let's click on create. अब ये क्या हुआ? ये कुछ नई चीज़ खुल गई, काफ़ी कुछ दिख रहा है यहाँ पे. काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लग रहा होगा कि यार what the hell, ये क्या खुल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है. डोंट वरी, समझेंगे अपन एक चीज़. सो बहुत सिंपल चीज़ है, नथिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड. अगेन लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टॉप कि क्या चल रहा है इधर. So on the top of the screen, you can see there is a file menu, edit, add, view, tools, and help. So file, basically, सबको पता है. File to create a new game, to open a recent game, and save your game, save as a particular thing or something, or you can export it to iOS, Android, OS 11 or OS X or अपना Windows. So export is used for मतलब exporting your game to some other platform. Then edit, again undo redo वाले buttons, scene align करना. Scene क्या होता है I'll tell you, just अभी पढ़ लो क्या क्या है. You can add a new character, an object. Add is for adding something. View is to make your working area, zoom in zoom out करना and all that stuff. Tools ज़्यादा किसी काम का चीज़ नहीं है. It is just to organize your game basically, nothing too much fancy. And help, if you want to read the documentation, go to the welcome screen and all that stuff. It's under help. Then let's see ये क्या खुला क्या है अपना. So it's basically your work area जहाँ पे you will be making your entire game. So अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा.
कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टार्ट क्या है, वन क्या है, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट ट्राई टू प्ले दिस गेम. मतलब देयर इज दिस प्रीव्यू बटन दैट विल अलाउ अस टू प्ले द करंट गेम जो भी अभी सीन में बना हुआ है. जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू नीड टू क्लिक ऑन ओके. ओपन जीएल के कुछ पता नहीं क्या होता है ये, अभी तक मुझे समझ नहीं आया. And your preview will be opened. So just click on start and your game will be up and running. So you can see there are these objects. If you like collide with any of this object, you will die. Your character will die basically, and a game over screen will pop up. So a pretty simple game. Nothing too much fancy. कोई sound नहीं है, कोई कुछ नहीं है. So ठीक है. It is what it is. ठीक game है. So the main game area is where all the action happens. You need to make different levels for this game. Like start is where your character will start from, and you can add more scenes. So scenes are like different levels in an endless runner game. So like there is one in this game, there is one level with this different triangles and some triangles over here and here. So you can make some other scenes as well to make it more randomized and all that stuff. So that's about the apna main game area. So we'll be dragging and dropping our objects into the main screen to add it to our scene. I'll tell you कैसे करना है वो. Just एक बार समझ लो क्या चल रहा है यहाँ पे. Don't get too much confused कि यार ये क्या है क्या नहीं है. बहुत simple चीज़ है. डोंट थिंक कि यार ये क्या खोल लिया अभी. जस्ट लीव इट अभी जैसा भी है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज नाउ, इन द गेम देयर इज दिस mind map sort of thing, which is also known as menu editor. Just click on this and you will see all these nodes. So what are nodes? सारे यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं ना? मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं ना यहाँ तक? No. कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, जस्ट मेरे को बीच में इंटरप्ट कर देना. इट्स फाइन. ठीक है. सो दिस इज अ माइंड मैप ऑफ आवर गेम. सो माइंड मैप क्या होता है? इट्स बेसिकली हाउ द गेम विल फ्लो इन द सेंस कि वंस द यूजर स्टार्ट द गेम, व्हाट ऑल विल हैपन विद हिम. सो it's very intuitive अगर तुम इसको ढंग से पढ़ते हो, अभी समझते हो. So as soon as a player enters or starts the game will load. You can see there is a load button, and after loading it will go to a main menu UI. So the load is connected with main menu. That means as soon as the user starts the game, it will go to the main menu UI, from where there is again this thing called start. Start is if the user presses the start button, it will go to the world UI. World UI basically. So world UI is basically the actual game screen. जैसा अपन ने अभी देखा, as soon as I clicked on play, it started, and from the loading screen, it went to the main UI. Now from main UI, if I click on start, the game will start. So now I am in the world वाला UI. And world वाले UI के अंदर there is an overlay of this thing, game pause and game over wala thing. So like if I click on this button, the game will pause and I'll get like I'll go to the pause wala node, and from pause node I can go to either main menu or continue the game from where I left. So if I click on continue, I'll again go back to the world and world UI thing. So as soon as I click on continue, I'm again back to the same screen जहाँ पे I'm continuing my game. And there is one more thing, which is the game over situation. So if my character dies, it will go to the game over screen. From the game over screen, I have again two options, either to go to the main menu or to restart. So main menu will take me to this main menu UI wala node, and restart will take me to this world wala node. So जो भी तुम करोगे, if I click on main menu, now I am at this node. So basically mind map tells you the whole flow of the game. बहुत simple चीज़, समझ आई what mind map is? Yes. तो ज़्यादा jargons तो यूज़ नहीं करे ना मैंने, गंदे वाले.
ठीक है, कुछ नहीं किया. Okay, so बहुत सिंपल चीज़ है. Don't, अगर कोई भी डाउट है just let me know. I'll again explain it to you. Doesn't matter. तो यार ठीक है. Once you एक click था on, क्वेश्चन मेरे को हाँ जी बोलो. कि जैसे जो सीक्वेंस है अगर हम उसको उल्टा सीधा कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा ना फर्क. से फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टार्ट से डायरेक्टली वर्ल्ड वाले यूआई पे जाना है, मतलब जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक, मतलब जैसे आई लोड द गेम आई गो टू द वर्ल्ड यूआई. सो अगर अब ये चीज़ मैंने कर दी है एंड आई रिमूव दिस लिंक एंड क्लिक ऑन प्ले, इट विल डायरेक्टली गो टू द अपना वर्ल्ड यूआई. समझ आया? एंड भैया हाँ जी. माइंड मैप ओपन कहाँ से किया था? Okay, so in the game screen, you will be seeing this thing. अपना पता नहीं क्या है, ग्राफ सा कोई बना हुआ है अजीब सा नोड्स के साथ. So once you click this, you will be able to open mind map. Okay, got it? एंड जैसा आप ये अभी स्ट्रेच कर रहे हो तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं, it's just to pass time maybe. अच्छा ओके. कुछ नहीं होता है इससे, कैसे भी कर लो. It's just to make the things organized a bit, because it is possible that if your game is a multi-world game, you'll have more than one worlds. So उसके लिए just to organize things, you need to क्या कहते हैं अपना adjust these nodes and all that. और कुछ sense नहीं है. ठीक है, so I guess that's clear. So यार अब क्या है? अब if you click on any node, say for example I clicked on start node, I can see there are some options like music add करना और music को loop करना या कुछ. And if I double click on start node, I can see the loading screen कि if a person opens the game, this is the loading screen that the person will see. It has a Buildbox logo. इसको अपन नहीं हटा सकते because obviously paid है. And we cannot even change the start screen because obviously मतलब free version use कर रहे हैं अपन. So there is no point in understanding what start, like how to edit start thing until and unless you are using a paid version. उसके बाद let's move to the main menu UI. So once you click on main menu, you'll see that there are some options. Ki what is the name of this node? If you want to add some ad or something, you can do that. Add banner, interstitial ad, or what should be the frequency of the ad and things like that. And you can even add music. Okay, music से याद आया. Before that, just go to this link and ये मतलब क्या कहते हैं folder एक बार download कर लो, because these are all the assets that we'll be using in the game to make the game. So just go, तुम खोल ही पाओगे इसको and just click on download. कहीं पे भी डाउनलोड कर लो. आई गेस zip फाइल की तरह डाउनलोड होगा and just extract that zip file and just make an like folder बना लो जिसमें you have all these assets which are BG, black hole thing, music, Dropkit and platforms. ठीक है, तो चाहिए वो लिंक तो मतलब this is the link, just use that to download the stuff. So main menu की अगर बात करते हैं तो it has few options. You can change them if you want. उसके बाद we have if we double click on main menu UI, you will see ये वाली screen जो कि अपन को loading screen के बाद दिखती है जब if we play the game, है ना. So अभी we'll keep it simple, मतलब we'll not do any changes, but if you wish you can change it according to your game. So say for example, let's remove this thing. So how to remove? Just click on the element, जो भी चीज़ तुम्हें remove करनी है, and press delete or delete button on your keyboard, and it will be deleted. If you wish to hide something, you can hide it as well. That's normal stuff. So चलो अभी let's not make any changes in the main menu. We'll directly go to our game UI. So
it doesn't have much options over here, so you cannot change many things. But if we move to world, the world has a lot of options like gravity, time warp, friction, velocity drag, physics याद आ गई होगी, bounce, score multiplier, all that stuff. आ गई physics याद? Gravity, time warp सुन के याद नहीं करना चाहते थे लेकिन आ गए। नहीं करना चाहते। मेमोरीज कोई बात नहीं। इसके अंदर तुम्हें कोई फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नंबर्स के साथ खेलना है एंड परफेक्ट गेम विल बी मेड। सो ग्रेविटी इज, जैसा यू ऑल नो, साइंस वाले ही हो तुम लोग, ग्रेविटी इज एनीथिंग दैट पुल्स यू डाउन, मे बी ऐसे ही कुछ होता है। तो अभी अपने केस में सिंस वी आर मेकिंग समथिंग लाइक रॉकेट एंड ऑल दैट स्टफ, सो जीरो ग्रेविटी रखी है। सो यू विल बी गेसिंग कि यार ये दो जीरो क्यों है। सो वन इज फॉर एक्स एक्सिस की ग्रेविटी एंड द अदर इज वाई एक्सिस की ग्रेविटी। सो एट फर्स्टली देयर इज एक्स एक्सिस की ग्रेविटी जो कि दैट विल पुल यू डाउन, एंड देन देयर इज वाई एक्सिस की ग्रेविटी दैट विल पुल यू टुवर्ड्स लेफ्ट। So you can put it as a positive number and even a negative number. So if it is a negative number, reverse हो जाएगा effect. So for x-axis की gravity, if you put it as a negative number, maybe -10, the thing will go up. If you put the y-axis की gravity as minus something, it will pull you towards right. That's the funda of gravity. पता ही है सबको. Time warp ज़्यादा कुछ difference नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है. Just leave it. क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, किसी को नहीं पता, लेट्स लीव इट। फ्रिक्शन पता ही है, अपोज करती है जो भी फोर्स। सो से फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार इन योर गेम एंड दैट इज मूविंग फॉरवर्ड इन अ, मतलब रोड के ऊपर मूव कर रही है वो। सो देयर शुड बी सम फोर्स दैट शुड ड्रैग इट बैक, ताकि कार डज नॉट गेट इनफाइनाइट वेलोसिटी और मूव आउट ऑफ सीन और समथिंग। सो द फ्रिक्शन इज बेसिकली उस चीज़ को पीछे पुल कर रही है, कार को पीछे पुल कर रही है। फिर वेलोसिटी ड्रैग, इफ योर ऑब्जेक्ट इज इन एयर, मतलब कोई उसके ऊपर एक्चुअल फोर्स नहीं लग रहा, तो देयर शुड बी सम फोर्स, मतलब एयर फोर्स होना चाहिए। अब दैट इज नोन एज वेलोसिटी ड्रैग बेसिकली, कि यार देयर इज एन एरोप्लेन मूविंग फॉरवर्ड, सो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसको आगे जाने से रोक रहा होगा, सो बेसिकली दैट इज अ वेलोसिटी ड्रैग। So let's keep it as अपना जो भी constant numbers थे, in this case it is 50 and 50 and 88. ये क्या हो गया? हाँ, so ठीक है। उसके बाद there is this bounce force. So bounce force is basically if you have a ball or something and it collides on a प्लेटफॉर्म और समथिंग, सो अगर बॉल आ रही है अपने प्लेटफॉर्म पे तो इट शुड बाउंस। फिजिक्स का लॉ यही बोलता है, अनटिल एंड अनलेस सारा अपना फोर्स ट्रांसफर नहीं हो जाता अपने ग्राउंड पे, द बॉल शुड बाउंस। तो दैट इज द बाउंस फोर्स, कि कितना बाउंस होना चाहिए उस बॉल को आफ्टर इट कोलाइड्स विद अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैन बी एनीथिंग, मतलब अपना टेबल या कुछ भी हो सकता है। सो अभी लेट्स कीप इट अगेन 0 पे। स्कोर मल्टीप्लायर, कितना लाइक ऑन एवरी डिस्टेंस कवर्ड कितना स्कोर इंक्रीज होना चाहिए। सो 1 करते हैं अपन, कोई बात नहीं। गेम डायरेक्शन -90। सो व्हाट दिस -90 सिग्निफाइज? -90 इज कि यार गेम जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स टॉप। अगर तुम प्ले करते हो इस गेम को, यू कैन सी गेम ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। तो -90 इज मूविंग टुवर्ड्स टॉप। जैसा मैंने ग्रेविटी में तुम्हें बताया था कि यार माइनस वैल्यू कर दो ग्रेविटी के अंदर, थिंग विल मूव अप। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। -90 इज गेम इज मूविंग इन ऊपर वाला डायरेक्शन। सो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो तुम कहोगे कि गेम मूव ही नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। इट विल मूव टुवर्ड्स अपना इस साइड पे, दैट इज राइट साइड। सो तुम कहोगे यार गेम डायरेक्शन क्या है? सो गेम डायरेक्शन इज बेसिकली अ रेडियल क्वांटिटी जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री घूमता है। सो इफ आई कीप इट एज -90, मतलब 0 से नहीं स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी रेडियल वैल्यू लेते हैं, मतलब 0,
90 प्लस 90 माइनस 90 180 माइनस 180 एनीथिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग द गेम वर्ल्ड विल मूव. सो अगर 0 है तो इट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट. इफ इट इज 90, क्या लगता है अगर 90 लगा रखा तो नीचे क्या जाएगा, होगा? नीचे नीचे जाएगा। जाएगा? पक्का? पक्का पक्का। ठीक है, सही बोल रहे हो तुम तो. नीचे जा रहा है गेम अब, इसलिए अपन ने क्या किया, -90 कर दिया. क्यों भला? ताकि अपन ऊपर की तरफ जा सके. बिकॉज नीचे किसको जाना है यार, एक बार ऊपर पहुंचो तो दुनिया छोटी लगती है नहीं ऊपर से. गंदे जोक. ठीक है. देन कैमरा स्मूथ. कैमरा स्मूथ इज यार, कैमरा कितना अच्छे से मूव करना चाहिए. इफ आई कीप इट एट 1, लैगिश होगा काफी. अच्छा, इसमें पता नहीं चल रहा. FPS टाइप। नॉट FPS. यार ये वाले जो चीज़ है दैट विल बी मोर विजिबल इन द प्लेटफॉर्मर काइंड ऑफ गेम. तो इधर इतना मैटर नहीं कर रहा. मतलब समझाऊंगा कैसे यार इस चीज़ को. FPS मान लो इसको. स्मूथ कितना होगा? मतलब कैमरा का जो ट्रांजैक्शन है वो कितना स्मूथ होगा बेसिकली. तो फिर ठीक इसको है, छोटी वाली क्यों रखेंगे, बड़ी रखो. बड़ी कर दो, डजंट मैटर. 100 कर दो. मतलब देर आर सम गेम्स उसके अंदर हो सकता है रिक्वायर्ड हो 1 वैल्यू या 2 वैल्यू कुछ भी. इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा बिकॉज द कैमरा इज फॉलोइंग अ कैरेक्टर बेसिकली. तो ठीक है, जो भी है इट्स फाइन. देन ग्रिड रोटेशन, ग्रिड साइज छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. देन देर इज दिस ऑब्जेक्ट डिलीशन थ्रेशोल्ड. इसका क्या मतलब है कि भाई आई हैव एन ऑब्जेक्ट. मतलब जब कोई गेम खेलते हो तुम, तो द गेम वर्ल्ड लोड्स एंड इट क्रिएट्स दीज ऑब्जेक्ट्स. दिस ब्लैक कलर के ट्राइंगल्स, दिस ब्लैक कलर का बॉक्स, दिस वाइट वॉल, दीज आर ऑल अपने ऑब्जेक्ट्स. सो कितना पिक्सल्स डाउन अपने गेम स्क्रीन के बाद वो वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए, फॉर ऑब्वियस रीजन कि मेमोरी के ऊपर लोड ना पड़े. समझ नहीं आ रही है चीज़, कोई बात नहीं, जस्ट कीप इट एट डिफॉल्ट वैल्यू. बट मैं एक बात पूछूं? हाँ जी. जैसे अभी आप अगर बिल्कुल मूव नहीं करते तब भी ये हिट नहीं करता, तो वो ऐसा कैसे बनाए कि वो हिट करे उसको? हिट करे? अरे वो विल मेक द गेम अकॉर्डिंगली ना. ऐसे ये देख, बाद में करते हैं, चलो उस बारे में बात. अभी क्लियर करता हूँ पहले तुम्हारे बाकी पॉइंट्स. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट डिलीशन थ्रेशोल्ड इज बेसिकली कितना एरिया कवर करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नहीं है तो वो डिलीट हो जाए बेसिकली, ताकि मेमोरी पे लोड ना पड़े. दैट्स द ऑब्जेक्ट डिलीशन थ्रेशोल्ड. फोर्स मूवमेंट इज बेसिकली कि कितना लाइक हाउ द सीन शुड मूव अहेड फोर्सफुली, ताकि द ऑब्जेक्ट शुड उसके साथ साथ मूव करे. सो तुम अगर अपना सबवे सर्फर देखते हो, टेम्पल रन देखते हो, तो आफ्टर सम टाइम स्पीड इंक्रीज होती है उस ऑब्जेक्ट की, मतलब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, है ना. तो वो कैसे करेंगे यार अपन अगर एंडलेस रनर बना रहे हैं? तो उसके लिए विल सेट आर मिनिमम स्पीड एज 75, मतलब कुछ भी रख दो मिनिमम स्पीड, एंड सेट अ मैक्सिमम स्पीड एज 250, एंड से कि यार इंक्रीज करो 2.5 टाइम्स आफ्टर एवरी 100 pixels maybe or something like that. या आफ्टर एवरी 100 seconds और 100 pixels, इसके अंदर कुछ प्रीसेट होता है कि इंक्रीज माई स्पीड बाय 2.5, या इफ आई कीप इट एज इंक्रीज बाय आफ्टर एवरी इतने टाइम इंक्रीज इट बाय 20, तो मैं ज़्यादा विजिबल होगी ये चीज़. अभी थोड़ा धीरे है, धीरे धीरे अगर चलता रहा ये काफ़ी जल्दी है, काफ़ी तेज़ मूव करने लग जाएगी गेम. अभी पता नहीं चल रहा ज़्यादा, बट या वो है कि फोर्स मूवमेंट अपना स्पीड इंक्रीज करता है बेसिकली, कि 75 से शुरू करके 250 तक जाना है. थोड़ा टाइम लगेगा, अभी देखो थोड़ा सा तेज़ हो गया है, थोड़ा आगे चलेगा तो और तेज़ हो जाएगा. सो दैट इज़ अबाउट आवर फोर्स मूवमेंट. विल नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस, कोई ज़रूरत नहीं है. देन इफ़ वी मूव टू आवर अपना गेम UI, वर्ल्ड UI, इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं समझने के लिए. जस्ट देर इज़ अ साउंड का बटन एंड ऑल दैट, तो इट्स फाइन. उसके बाद गेम ओवर, अगेन नथिंग मच. म्यूज़िक है, एड्स हैं, सेम पॉज के लिए सेम चीज़ें हैं. तो नोट्स में कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ थी नहीं. तो यार चलते हैं, अब एक्चुअल गेम बनाते हैं. तो यार अब क्या करना है तुम्हें, वर्ल्ड की तरफ जाना है. अपना वर्ल्ड वाला जो टैब था ब्लू कलर का, डबल क्लिक कर दो इस पर.
कर दिया? कोई डाउट अभी तक? नहीं बढ़िया। नहीं भैया। बट कुछ भी हो तो बता देना, उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो यार वर्ल्ड वाला अपन ने यूआई खोला। अब तुम्हें क्या करना है यार, सारा कुछ डिलीट करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले सीन 1 इसको सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन डिलीट, क्योंकि अपन ये स्क्रैच से कुछ बनाएंगे ना। सो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द करंट सीन? यस, डिलीट करो। स्टार्ट वाले को डिलीट नहीं करेंगे, जस्ट सिलेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एंड प्रेस द डिलीट बटन एंड इट विल बी डिलीटेड। सिमिलरली बैकग्राउंड जो है अपना, उसको भी डिलीट कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली बैकग्राउंड भी अपन को नया चाहिए यार। एक कैरेक्टर लेट्स कीप इट एज इट इज, अभी विल नॉट चेंज इट, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना हो गया सबका। तो अब ना आई टेल यू हाउ टू ऐड न्यू कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड्स एंड थिंग्स। सो यार अब क्या करना है तुम्हें, तुमने सारे डाउनलोड कर लिए ना ये चीज़ें जो मैंने बताई थी, मतलब जो लिंक भेजा था? यस नो? बहुत स्लो हो गया। भाई आपने डिलीट कैसे करा? क्या डिलीट कैसे करा? हो गया डाउनलोड तो, पर डिलीट कैसे करा? एक बार डिलीट अच्छा, नीचे डिलीट कैसे किया? से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ है यहाँ पे, आई नहीं क्लिक ऑन इट। स्टार्ट की साइड में जो था वो कैसे करना है? तो वो कैसे डिलीट किया? सीन कैसे ठीक है। पूरा? सो ये सीन 1 इसको सिलेक्ट कर लो, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक ऑन डिलीट बटन। अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन होता है ना एक, यस नो? आ गया। डिलीट प्रेस किया एंड हो क्लिक गया, ऑन हो गया। यस, इससे डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट करा एंड डिलीट कर दिया। एंड भैया बैकग्राउंड डिलीट कैसे करा? सो बैकग्राउंड के लिए क्या किया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ दिख रहा था यहाँ पे मुझे उस टाइम पे, जस्ट उसको क्लिक करा एंड सेम डिलीट बटन प्रेस कर दिया। मैं बाद में एक बार और दिखा दूंगा कैसे करा बैकग्राउंड डिलीट, एक बार ऐड कर देते हैं अपन चीज़ें। ठीक है, समझ आ गया कैसे डिलीट किए चीज़ें? आ गया। आ गया। बैकग्राउंड बता दो दोबारा, बैकग्राउंड नहीं हो रहा। चलो बैकग्राउंड बता देते हैं तुम्हें। अभी मत देखना क्या हो रहा है ये। से फॉर एग्जांपल ये एक बैकग्राउंड था अपना, मैंने यहाँ पे देखा यार ये बैकग्राउंड्स के अंदर लिखा हुआ है बैकग्राउंड करके कुछ, दिख रहा है तुम्हें? इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करो, येलो कलर का हो जाएगा। देखो कभी कुछ येलो है, कभी कुछ येलो है। बैकग्राउंड अगर डिलीट करना है, बैकग्राउंड को येलो कलर का करो एंड क्लिक ऑन डिलीट, सिंपल डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड। आया समझ? आ गया। जी बढ़िया, हो गया ना? डार्क क्लाउड्स करना है नहीं? क्या डार्क क्लाउड्स भी आ रहे हैं। समझ नहीं आया मुझे, वापस बोलो। डार्क बैकग्राउंड के अंदर डार्क क्लाउड कह रहा है, डिलीट करना है। अच्छा नो, अब उसको रहने दो, कोई बात नहीं, मैंने कर थोड़ा दिया। कोई बात नहीं, डिलीट कर दो, इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो यार अब विल मूव अहेड एंड मेक आवर ओन गेम। सो सबसे पहले यार कोई भी गेम बना रहे हो, बैकग्राउंड चाहिए होगा उसके लिए अपन को। तो तुम्हें फाइल दिख रही होगी अपने डाउनलोड्स के अंदर, जिसका नाम है बीजी करके, दैट इज बैकग्राउंड। डाउनलोड हो गई ना ये वाली फाइल? आई होप एवरीवन हैज डाउनलोडेड दिस फाइल। हो गई थी। हो गई। ग्रेट। सो यार सिंपली बिल्ड बॉक्स को ओपन करो एंड जस्ट जो भी फोल्डर है उसको ओपन करो एंड सिलेक्ट दिस बैकग्राउंड। ड्रैग करना है इसको और बिल्ड बॉक्स के ऊपर लेके जाना है। ये गेम स्क्रीन है, इसके ऊपर लेके जाना है। अब यार ये पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ लाए हो तुम? इज इट अ कैरेक्टर, इज इट एन ऑब्जेक्ट, इज इट अ बैकग्राउंड और इज इट सम एक्शन? भाई ये मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाऊंगा। बैकग्राउंड शुड बी येलो इन कलर एंड अपना माउस बटन रिलीज कर दूंगा मैं। सो बिल्ड बॉक्स विल से यार ओके यू हैव ब्रॉट अ बैकग्राउंड फॉर मी, आई विल पुट इट इन द बैकग्राउंड्स वाला टैब। सो बैकग्राउंड्स के अंदर बीजी अप्लाई हो गया एंड जैसे बीजी अप्लाई हुआ अपनी गेम स्क्रीन के अंदर भी ब्लू कलर का कुछ दिखने लग गया। तो इससे यू गेट टू नो कि भाई बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। हुआ बैकग्राउंड अप्लाई? हो गया। फोल्डर कैसे? हाँ जी भैया। फोल्डर क्या? फोल्डर कैसे खोला आपने? फोल्डर कैसे खोला? बिल्ड बॉक्स वर्कशॉप वाला।
कहाँ से खोला मैं कुछ? कहाँ से खोला? जहाँ पे सर, तुमने ड्राइव डाला। की लिंक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने ये चीज़ डाउनलोड करी है, डाउनलोड करते हैं अपन इसको कहीं पे। नहीं मैंने नेट, एक्सट्रैक्ट कर लिया, मैं समझ गया वो ट्रैक कर। अच्छा कर दिया ना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जस्ट बैकग्राउंड को ले जाओ यहाँ पे, बैकग्राउंड के ऊपर एंड होल्ड अपना माउस बटन रिलीज कर दो, बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। फिर यार अपनी बात आती है कि यार गेम के अंदर कुछ एनिमीज होने चाहिए, कुछ लेवल्स टाइप का कुछ होना चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो उसके लिए यार वी हैव these 3 platforms जिनको we'll add one by one, क्योंकि बिल्ड बॉक्स 1 by 1 ही सपोर्ट करते हैं। अगेन इनको ड्रैग करके लेके जाना है एंड इस बार ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करेंगे इन्हें, बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन आवर गेम। कोई करेक्टर नहीं है, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाओ एंड पेस्ट कर दो। सिमिलरली ये भी पेस्ट कर दो, सिमिलरली येलो वाला भी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अगर अपन अब स्क्रीन बड़ी करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी यार प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 ऐसे बड़ा बड़ा सा कुछ ऐड हो गया है। अभी के लिए जस्ट एक बार इनको डिलीट कर दो स्क्रीन से एंड तुम देखोगे यार ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज़ ऐड हो गई है। दैट प्लेटफॉर्म इज एडेड, प्लेटफॉर्म 1 इज एडेड, प्लेटफॉर्म 2 इज एडेड। तो वी गेट टू नो कि यार एसेट्स जो हैं अपने गेम के वो ऐड हो चुके हैं, लाइक दे आर एडेड टू आवर गेम एंड नाउ वी कैन यूज देम जब भी वी वांट, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब कुछ गेम का यूआई बनाना, मतलब यूआई इन द सेंस कि कुछ लेवल्स बनाने पड़ेंगे। सो स्टार्ट मेन्यू जो है अपना, लेट्स कीप इट एज इट इज एंड click on this add button. What add button will do is it will add a new scene to your game. New scene, a scene क्या होता है? Scene is basically a set of pixels या एक set of thing, मतलब not thing, एक सीन है जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, यू नीड टू क्लियर दैट सीन टू मूव अहेड और टू मूव टू अनदर सीन। सो अगर अपन एग्जांपल लेते हैं किसी गेम का, अगेन सबवे सर्फर, बिकॉज व्हाई नॉट। तो सबवे सर्फर में इफ यू सी समटाइम्स देयर आर लाइक 2 trains coming from right side, sometimes there are 3 trains coming from 3 trains आ रही हैं, यू नीड टू उनके ऊपर जाना पड़ता है। या समटाइम्स देयर इज one train and there is some obstacle जिसके नीचे से जाना पड़ेगा and things like that. So all those are known as different scenes. यार कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आ रही है. So that is known as a scene. So we need to make some scenes in our game to make it more enjoyable या more playable और ऐसा कुछ. ठीक है, तो अब यार मैंने क्या किया, स्टार्ट पे था मैंने ये ऐड बटन दबाया एंड आई एडेड वन सीन. अब सीन जो है ये बिल्कुल एम्प्टी ऐड हुआ है, इट डजंट हैव एनी थिंग, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ अभी तक. तो व्हाट आई विल डू इज आई ऐड दिस प्लेटफॉर्म कि यार द कैरेक्टर शुड क्लियर दिस प्लेटफॉर्म टू मूव अहेड. सो अभी यार द platform is looking very bada sara. So what I can do is there is the scale का option and currently it is set at 1 and 1. So if I want to reduce it, I can set it to at 0.5 and 0.5. 0.5 10.5 हो गया. So if I set it at 0.5 0.5, you can see the scale is reduced now. ठीक है, तो यार अब रिड्यूस हो गया तो इट्स लुकिंग मच बेटर आई गेस नाउ. सो ठीक है, अब यार एक और चीज़ आती है कि यार प्लेटफॉर्म अगर हिट करता है मेरा कैरेक्टर, लाइक इन दिस केस दिस बॉल, इफ इट हिट्स दिस प्लेटफॉर्म द गेम शुड बी ओवर. यार प्लेटफॉर्म शुड बी एन एनिमी ऑफ द कैरेक्टर बेसिकली. सो द ओवरऑल एम ऑफ द गेम इज टू अवॉइड दीज प्लेटफॉर्म्स. ये रेड कलर का, ब्लू कलर का एंड येलो कलर का. So what I'll do is I'll select this platform जो ऐड किया है मैंने, select करूँगा इसको and go on to this properties. Properties में I'll see collision type कि यार अगर collide हो रहा है तो क्या हो. Destroy type, it should destroy the character. कि if the character touches this thing, the character should be destroyed.
सो अगर अपन इसको भी प्ले करके देखते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट, एंड अगर मैंने हिट किया तो गया, गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये हो गया अपना करेक्टर हिट करने पे जो चीज़ हो रही है कि यार अगर प्लेटफॉर्म हिट होता है, कोलाइड करता है, तो डिस्ट्रॉय द करेक्टर। अगर अपन इसको नो डिस्ट्रॉय करते हैं तो कुछ नहीं होगा यार, ऐसे करके बॉल अटक जाएगी अपनी यहाँ पे, एंड फिर उसको मूव करना पड़ेगा आगे। तो सेंस नहीं है यार इस चीज़ का, अपन को डिस्ट्रॉय करेक्टर करना पड़ेगा, सिंपली डिस्ट्रॉय करेक्टर किया अपन ने। तो यार ऐसे तो यार यहाँ पे मतलब लेट्स क्रिएट अ सिंपल सा इसका एक लेवल। अब तुम कहोगे यार कि बार बार मैं ऐसे प्लेटफॉर्म ऐड करूँ, उसका स्केल कम करूँ, काफ़ी टायरिंग हो जाएगा ये, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, ये प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया मैंने, येलो हो गया प्लेटफॉर्म, आई प्रेस कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, प्लेटफॉर्म का एक कॉपी बन गया। अब इस कॉपी को मैं ड्रैग करके इधर ले जाऊंगा, जो भी प्रॉपर्टीज थी इस प्लेटफॉर्म की सेम प्रॉपर्टीज इधर भी आ जाएंगी कि यार कोलाइड, डिस्ट्रॉय करेक्टर। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा कि यार ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी पता ही है ना तुम्हें क्या होता है। तो मैसेज आया, एनिमी करना है डिलीट। यस मनीष, एनी क्वेश्चन? भैया WASD भी कर सकते हो ना? WASD से क्या? अच्छा हाँ, WASD WASD से भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली WASD से भी होता है, हाँ सही बोल रहे हो, उससे भी कॉपी हो जाता है। बट ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी है जब अपने पास, तो फाइन। सो या यू कैन यूज दैट एज वेल कि यार इफ यू वांट योर न्यू, मतलब क्या कहते हैं यार इसे, द न्यू ऑब्जेक्ट शुड बी टुवर्ड्स योर राइट साइड, जस्ट प्रेस द D button and it will be copied towards right. If you want it on your left side, press A button and it will be at the left side. If you want it at the top, W दबा दो, अगर डाउन चाहिए तो S दबा दो, उससे भी कॉपी हो जाता है। बट कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द थिंग्स। तो थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस रखते हैं, एंड ताकि लाइक इफ वी प्ले थोड़ा लगना चाहिए कि यार दोनों तरफ कुछ ना कुछ है इधर करेक्टर के। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ सीन। सो विल क्रिएट मोर सीन्स एंड लेट्स रिड्यूस द सीन का हाइट। सो यार अभी क्या हो रहा है, ये बहुत लंबा सीन है कि यार द बॉल शुड कवर इतना सारा डिस्टेंस टू मूव टू अनदर सीन। सो व्हाट आई डू इज आई ड्रैग दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इससे क्या हुआ है, सीन जो है मेरा रिड्यूस हो गया, उसकी हाइट कम हो गई है। मान लो इतना कर दिया मैंने सीन का हाइट। सो अब क्या होगा, जल्दी जल्दी अपने लेवल्स आएंगे। देखो डिस्टेंस दो सीन्स में कम हो गया ना, दो सीन्स के अंदर डिस्टेंस कम हो गया। अगर ये ज़्यादा कर दें अपन, इफ यू इंक्रीज इट, तो दो सीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया अब। सो दैट्स हाउ वी एडजस्ट द हाइट ऑफ आवर सीन। ठीक है, तो यार अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू मेक मोर सीन्स। अब मैं क्या करूँगा यार, वापस ऐड करूँगा, फिर एम्प्टी सीन जनरेट होगा, टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि यार कंट्रोल सी कंट्रोल वी है अपने पास, जस्ट सीन 1 सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया एंड कंट्रोल वी दबा दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उससे अपने सीन्स ऐड होते रहेंगे एंड सेम सीन कॉपी हो जाएगा। तो अब इसका भी तुम नेम देखो अगर, तो इट्स नेम्ड एज 1। सो लेट्स चेंज इट टू 2 एंड फॉर दिस सीन लेट्स मूव these अपने प्लेटफॉर्म्स टू अनदर साइड हियर। ओहो यार अब यहाँ पे होना चाहिए। फिर लेट्स अगेन कॉपी दिस, नेम इट एज सीन 3। नाउ इट शुड बी इन मिडल में भी, ऐसे कर लेते हैं कुछ। फिर एक और बना लिया। एवरीवन जस्ट क्रिएट 4 सीन्स, 4 डिफरेंट सीन्स, एंड जब हो जाए तो लेट मी नो, फिर विल मूव फॉरवर्ड। सो जैसे मेरे 4 सीन्स बन गए हैं विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ प्लेटफॉर्म। इफ आई क्लिक ऑन प्ले बटन, नाउ द गेम सीम्स अ बिट प्लेएबल कि यार मुझे कुछ ना कुछ मूव करना पड़ता है अपना कैरेक्टर को टू गेट सम स्कोर और समथिंग, है ना। तो दैट्स हाउ द गेम विल गो अभी के लिए। और भी थिंग्स विल ऐड, सो इतना कर लो तो लेट मी नो, या कोई भी डाउट है इसमें तो अगेन लेट मी नो।
भैया सीन छोटा कैसे होगा, ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें। ओके, सीन छोटा कैसे होगा? तो अगर तुम देखो इसको बड़ा करते हैं पहले सीन को। अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लाइक करंटली द सीन इज लुकिंग लाइक दिस। मतलब यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, एरो के नीचे एक बॉक्स है। इस बॉक्स को होल्ड करके, मतलब राइट माउस क्लिक, लेफ्ट माउस बटन दबाओ, होल्ड करो एंड नीचे ले आओ इसको सिंपली एंड ड्रैग छोड़ दो इसे। इससे यू कैन सी अपना सीन छोटा हो गया, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है इसको। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर यू वांट सम स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ सीन, तो जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सीन। से फॉर एग्जांपल सीन 1 मैंने सिलेक्ट किया एंड सीन डिस्टेंस को एडिट कर दो। यहाँ पे सीन डिस्टेंस दिखेगा। से फॉर एग्जांपल आई वांट इट टू बी 450 और आई वांट दिस टू बी एज 430, आई वांट दिस एज 400 मे बी। मतलब जो भी तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है यू कैन पुट देम। I want this as 450 again. So with this also you can change the size of your scene or length of your scene basically. So अब सारे scenes की length भी अलग हो गई है। Clear इतना? भैया सीन कॉपी कैसे करना है? Okay. सीन कॉपी करना है, सीन को सिलेक्ट करा। से फॉर एग्जांपल मैंने सीन 4 सिलेक्ट कर लिया अभी, कंट्रोल सी, अपन जैसे कॉपी करते हैं नॉर्मली, कंट्रोल सी दबाया एंड कंट्रोल वी दबा दिया, सीन कॉपी हो गया। डिट्टो सीन। ये एक बार स्टार्ट वाला सीन दिखाना। हाँ जी, स्टार्ट। अच्छा, मैंने इसी में बना दिया शायद गलती से। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, यू कैन ऐड कहीं और भी, मतलब नया सीन बना लो, उसमें कर लो चीज़ें। जब बोलोगे तब विल मूव फॉरवर्ड। अभी के लिए 4 सीन्स बना लो रैंडमली एंड ट्राई टू प्ले द गेम एक बार। चल रहा है ना सबके गेम? हाँ यस भैया। भैया करेक्टर नहीं आ रहा मेरा। करेक्टर नहीं आ रहा तुम्हारा? शायद से डिलीट हो गया मेरे से, वो भी डिलीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है यार। अगर करेक्टर डिलीट हो जाता है तो ये करेक्टर अपना यहाँ पे इसको पकड़ के सीन 1 पे ले आओ, बस खत्म बात। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्टर पकड़ो और सीन 1 पे ले आओ, सीन स्टार्ट पे ले आओ अपना। ठीक है, चल रहा है अब। बहुत ही बढ़िया। कोई डाउट किसी को? या चलें आगे? बड़े कम बच्चे हैं यार, अच्छी चीज़ें मिस कर रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, एक मिनट मेरा बन गया। चलो हो गया ना सबका? लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ये सारे सीन कनेक्ट नहीं हुए हैं, जो सीन सिलेक्ट कर रहा हूँ वही चल रहा है। ओके, सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम ये वाला बटन दबा रहे होगे, प्रीव्यू सिलेक्टेड सीन। यू नीड टू यूज दिस वन, प्रीव्यू वाला बटन। सो अगर प्रीव्यू दबाते हो तो सारे सीन्स चलेंगे, पूरा गेम चलेगा इनफैक्ट। ठीक है, चले आगे, बताओ। हाँ भैया, नहीं, उसी से भी वही हो रहा है। इसी से भी वही हो रहा है। उसके हो सकता है सीन सारे सेम होंगे तो चेंज ही नहीं होगा। पॉसिबल करें है ना सीन चेंज। सीन नेम भी चेंज करके देख लो एक बार। एंड थोड़ा प्ले करो गेम। चलो एक बार वर्कशॉप के बाद अगर कुछ रहता है ऐसा तो अपन बाद में कर लेंगे बात इस बारे में। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपन ने यार 4 सीन्स बना लिए। नॉर्मल है यार, अभी तक कुछ ज़्यादा अपन ने करा नहीं। तो यार अब एक काम करते हैं अपन यार एक कैरेक्टर बना लेते हैं नया। ये बॉल जो है ये अजीब सी लग रही है मुझे। तो एक काम करो यार, तुम कहोगे यार कैसा बंदा है ये, इसकी फ़ोटो खींच लो यार इन सब की, कि यार कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज द वैल्यूज़ ऑफ आवर कैरेक्टर इन अ डिफरेंट कैरेक्टर। सो एक बार इनकी फ़ोटो खींच लो कैरेक्टर गेम प्ले सेटिंग की, ताकि थोड़ा सेम सा एक्सपीरियंस मिल जाए बट एट द सेम टाइम अपना कैरेक्टर चेंज हो जाए। सो यार अब क्या करना है तुम्हें, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली तो कोई बात नहीं, तुम चाहे करो ना करो। अब तुम्हें क्या करना है, अपना ये जो रॉकेट है
इस रॉकेट को सिलेक्ट करना है। रॉकेट को सिलेक्ट करेंगे अपन और लेके आएंगे अपने बिल्ड बॉक्स में, इसको एज अ कैरेक्टर ऐड करेंगे अब, क्योंकि भाई बिल्ड बॉक्स को अपन ने बताना पड़ेगा कि यार आई एम ब्रिंगिंग इन न्यू कैरेक्टर, तो जस्ट ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर, ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर एंड ड्रॉप कर दो। इसमें बोला है ओनली फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लाइब्रेरी कैन बी ड्रॉप इनटू द सीन। ओके, नो वरीज, ओके कर दो इसको। अब तुम्हें क्या करना है यार, रॉकेट वाला जो है इसको कैरेक्टर के ऊपर ले जाओ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी अपना सीन के अंदर ऐड होगा, जैसा पिछली वार्निंग में बोला था। तो अगर कैरेक्टर इज एट द टॉप, सो यू कैन सी स्टार्ट के अंदर द बॉल इज कमिंग। अगर रॉकेट इज एट टॉप, स्टार्ट के अंदर यू कैन सी द रॉकेट इज कमिंग। फेयर इनफ, क्लियर हुआ ये चीज? हो गया। ठीक है यार, बढ़िया। अब यार थोड़ी कैरेक्टर सेटिंग्स कहाँ पे क्लिक करने से आ रही हैं? ओके, कैरेक्टर सेटिंग्स आ रही हैं। तुम कैरेक्टर पे जब क्लिक करते हो ना, तब राइट साइड पे आएंगी। कैरेक्टर Okay. टैब जो है उसके अंदर क्लिक करो, तब राइट साइड पे तुम्हें कैरेक्टर सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यार अपन को इसका कोलिजन शेप चेंज करना पड़ेगा। कोलिजन शेप इज बेसिकली कि यार कौन सा शेप कोलाइड होने पे, मतलब क्या शेप है इसका कैरेक्टर का, ताकि कोलिजन के टाइम पता चल जाए कि यार कोलाइड हुई है चीज़ की नहीं हुई। तो एक बार अगर इफ यू क्लिक ऑन कोलिजन शेप का एडिट बटन, सो यू कैन सी अ बॉक्स इज अराउंड दिस अपना रॉकेट। अब यार ये वाला जो एरिया है थोड़ा राइट साइड पे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे, दिस इज नॉट द एक्चुअल कोलिजन शेप ऑफ आवर रॉकेट। सो व्हाट वी कैन डू इज अपन ऐड कर सकते हैं और पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स आर बेसिकली द पॉइंट्स दैट वी कैन यूज टू डिफाइन आवर कैरेक्टर का शेप। भैया हाँ जी, मेरे में ना कैरेक्टर ड्रॉप नहीं हो रहा, वो कह रहे थे drop फ्रॉम ही नहीं हो फर्स्ट रहा। लाइब्रेरी हो सकता है। हाँ वो एरर देते हैं कि खाली फर्स्ट लाइब्रेरी से आप ले सकते हो। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ओके प्रेस कर दो उस पर। हाँ करा था, कुछ हुआ नहीं। अब कैरेक्टर्स तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ओके, इसके अंदर रॉकेट 1 तुम्हारा नीचे आ रहा होगा, इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, बस कैरेक्टर के ऊपर ले जाओ इसको। ठीक है, आ गया, बढ़िया। तो यार अब कोलिजन शेप पे थे अपन, कोलिजन शेप को एडिट करेंगे क्योंकि यार मेरा कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो आई वांट कोलिजन शेप भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि गेम प्ले एक्सपीरियंस अच्छा हो। आई डोंट वांट कि यार बकवास सा कुछ कोलिजन हो गया एंड फिर प्ले स्टोर पे तुम्हारे रिव्यूज आ रहे हैं कि यार आई वाज मेकिंग अ न्यू हाई स्कोर एंड तुम्हारा कोलिजन शेप बकवास था। तो उसके लिए जितना रिफाइन कर सकते हो अपने कोलिजन शेप को, जस्ट डू दैट। भैया जरूरी थोड़ी कोलिजन के बाद शेप चेंज हो, डिस्ट्रॉय भी तो हो सकता है। शेप चेंज नहीं कर रहे अपन यार, अपन ये बता रहे हैं इसको कि यार ये जो पार्ट है मेरा, ये कोलाइड होना चाहिए। हिटबॉक्स है यार, हिटबॉक्स बेसिकली, जो भी कहते हैं, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, तो जस्ट इसको थोड़ा रिफाइन सा कर दो, जितना मतलब रिफाइन कर सकते हो उतना कर दो रिफाइन। यू कैन ऐड मोर, मतलब मैक्सिमम शायद 6 तुम डॉट्स ऐड कर सकते हो। कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। 8, तो मैक्सिमम तुम 8 डॉट्स ऐड कर सकते हो, 8 पिवट्स ऐड कर सकते हो, एंड यूजिंग दैट जस्ट क्रिएट योर हिटबॉक्स और समथिंग, कोलिजन शेप जो भी है। यू कैन इवन मेक इट एज अ सर्कल और पॉलीगन, जो भी चाहिए। अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो यू कैन मेक इट एज अ सर्कल, इफ इट इज अ पॉलीगन लाइक दिस, इट्स नॉट अ पॉलीगन बट जो भी है। ठीक है, सो जस्ट एग्जिट कर दो एंड योर कोलिजन शेप इज नाउ इन प्लेस, जैसा भी है जो भी है इट्स देयर। सो यार अब लेट्स मूव थोड़ा डाउनवर्ड्स एंड जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी दो सेटिंग्स। कास्ट शैडो शुड बी इनेबल्ड, ऑटो टिल्ट इनेबल कर दो। इसके बाद गेम ओवर डिले कुछ करना है, गेम ओवर डिले कीप इट एज 1, कैमरा शेड कीप इट एज 1, कैमरा फ्लैश 0.5, ऑल एट्रीब्यूट शुड बी 1। सो यार अब ये है क्या चीज़? ऑटो टिल्ट इज बेसिकली यार अगर कैरेक्टर राइट या लेफ्ट साइड घूम रहा है तो द इमेज शुड आल्सो रोटेट, थोड़ा अच्छा प्लेएबल इफेक्ट देता है उसके लिए। सो फॉर दैट वी हैव ऑटो टिल्ट। कास्ट शैडो इज बेसिकली शैडो अगर कास्ट करना है किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो, अगर नेसेसरी नहीं है तो जस्ट स्विच इट ऑफ, कोई बात नहीं।
देन वी हैव गेम ओवर डिले कि यार दो चीज़ें हैं कि as soon as I hit an enemy the game should be over या हिट करने के बाद जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद गेम ओवर हो, तो उसके लिए गेम ओवर डिले डालते हैं. देन देयर इज कैमरा शेक कि यार अगर गेम ओवर होता है तो थोड़ा सा कैमरा शेक होता है कि फील आए भाई कि कुछ हुआ है. देन देयर इज कैमरा फ्लैश कि गेम ओवर पे थोड़ा सा फ्लैश करे मेरा कैमरा टू टेल कि कुछ हुआ है. फॉल एट्रीब्यूट आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई कीप इट एट 1. देन वी हैव मैक्स स्पीड. अगेन यू विल सी कि यार दो वैल्यूज हैं, एक एक्स एक्सेस की और एक वाई एक्सेस की. सो यार अपन को क्या करना है, दोनों को सेम वैल्यू देनी है, 40-40 कर देंगे. यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर विश कि यार अगर तुम्हें लगता है कि कम करनी है या ज़्यादा करनी है, यू कैन डू दैट, डजंट मैटर. देन देयर इज बाउंस फोर्स. आवर गेम इज नॉट इनटू बाउंसिंग और समथिंग, कोई जंप नहीं है तो 0-0 रखेंगे उनको भी. बाउंस फोर्स भी सेम 0-0. Then there is jump timeout. So jump timeout is basically यार एक जंप के बाद दूसरी जंप का कितना टाइम होना चाहिए. Since I am not using any jump का mechanism, I'll keep it as 0, doesn't matter. Ground threshold पता नहीं क्या है, कोई भी random value कर दो, it's fine. Jump from ground, nothing. Then there is rotation drag. पिछले वाले में था इसलिए I'll keep it. ऐसा भी है. Let's keep it. Purchase method should be free. Direct movement should be enabled. Image direction should not be enabled. Fixed rotation should be enabled. तो यार जस्ट एक बार नोट कर लो ये सेटिंग्स एंड अपने उसके अंदर क्या कहते हैं अपने गेम में भी सेम सेटिंग्स कर दो ताकि कुछ डिफरेंस ना लगे अपने दोनों गेम्स में. हो जाए तो बताना यार, फिर विल मूव फॉरवर्ड. कोई डाउट तो बताओ. कोई डाउट? बढ़िया, फिर चलते हैं आगे. इतना हो गया तो यार अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कैरेक्टर बड़ा मोटा सा है, इसको छोटा ना कर दें. बहुत बड़ा सा नहीं लग रहा. सिंपली यार क्या करना है, इसको छोटा कर दो 0.5 एंड 0.5. मुझे लग रहा है ज़्यादा छोटा हो गया तो 0.75 कर दो इसका साइज. लेट्स कीप इट 0.75. अब क्या करना है यार, अब सिंपली एक बार चला के देखते हैं अपना गेम कैसा लग रहा है, देखते हैं कैसा कैरेक्टर है. ये काफ़ी मोटा है कैरेक्टर अभी भी. एंड तुम देख रहे हो अगर लेफ्ट या राइट घूम रहे हैं तो इट इज़ इमेज जो है रोटेट हो रही है. अभी काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है ये. सो लेट्स रिड्यूस इट टू 0.5 ओनली. 0.5 भी बड़ा ही रहेगा इसके लिए. तो 0.5 के बाद या इट्स लुकिंग गुड नाउ. ठीक है. तो यार अभी ब्लैंक सा लग रहा है गेम कि यार कैरेक्टर जो है वो कुछ मज़ा ही नहीं कर रहा. तो इतना हो गया ना सबका. बैकग्राउंड लगा हुआ अच्छा. हाँ जी हो गया. भैया मेरा करेक्टर शो नहीं कर रहा उसमें. इसमें गेम खेलते हुए करेक्टर शो नहीं कर रहा. कैरेक्टर ऐड कर दो ना, ऐसे पकड़ो और ले जाओ यहाँ पे. नहीं, ऐड कर दिया, सब सेटिंग्स कर दी, पर वो शो नहीं हो रहा उसमें. रोटेशन ड्रैग नहीं होगा. ये सारी सेटिंग्स देख लो यार एक बार, ये सारी इनेबल रखना, तभी कुछ मतलब इनके बिना नहीं चलेगा वो गेम ढंग से. जैसे अभी सेम जो सेटिंग मैंने बताई ना, जस्ट कीप दोस वंस. तुम्हें अपने सीन में दिख रहा है कैरेक्टर? हेलो बताओ यार. सॉरी आई कांट हियर यू. आई एम सेइंग तुम्हें अपने सीन में कैरेक्टर दिख रहा है? जैसे यहाँ पे मुझे मेरे स्टार्ट सीन में आई कैन सी माय कैरेक्टर. या सेम फॉर यू. यहाँ पे दिख रहा है मुझे कैरेक्टर. दिख रहा है तो यार आई गेस कोई सेटिंग में दिक्कत होगी पक्का, बिकॉज अदरवाइज इट शुड वर्क यार. चलो लेट्स डू वन थिंग, आफ्टर द वर्कशॉप विल सी क्या दिक्कत है. ओके यार तो अब तक ट्राई करो फिगर आउट करने का. हाँ जी. मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा गेम कैसे खेलूं. टफ हो गया. गेम कैसे खेलना है यार, सिंपली अपना माउस यूज करो एंड नहीं मूव इट. वो तो पता है लेकिन थोड़ा टफ हो गया. हाँ टफ तो है ये गेम, नो डाउट. कोई बात नहीं, इजी कर लेना अपने आप. तुम्हारा गेम है, यू कैन
modify it as you want, doesn't matter. I am the god. You are the creator of the game. चलो अब यार आई वॉन्ट थिंक कि यार ये रॉकेट है तो इसके पीछे कुछ फ्यूल निकलना चाहिए, है ना, तभी मज़ा आएगा अपन को. तो फ्यूल के लिए अपन क्या करेंगे, डिफॉल्ट एनिमेशन दिख रहा होगा तुम्हें कैरेक्टर का. वंस यू सिलेक्ट द कैरेक्टर यू कैन सी दैट देयर इज दिस डिफॉल्ट एनिमेशन एंड इसको एडिट करने का एक पेन का बटन है. जस्ट क्लिक ऑन दैट पेन एंड यू कैन सी अपना यार कैरेक्टर खुल गया है. अब तुम्हें क्या करना है यार, सिंपल सी चीज़ है. गो ऑन टू इफेक्ट्स, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड पार्टिकल. पार्टिकल को ड्रैग करो एंड अपने कैरेक्टर के ऊपर ले आओ. ठीक है, पार्टिकल एक को बारी कैरेक्टर के वापस ऊपर ले. बताना कैसे खोलना है उसको. कैरेक्टर सिलेक्ट करा अपन ने रॉकेट वन को, यहाँ से अपने लेफ्ट साइड से डिफॉल्ट एनिमेशन के ऊपर होवर किया तो यू कैन सी देयर इज दिस पेन. अपना पेन का बटन है जिससे तुम एडिट कर सकते हो अपना कैरेक्टर डिफॉल्ट एनिमेशन के साइड में. जस्ट क्लिक ऑन एडिट, इफेक्ट्स में जाना है, नया टैब खुलेगा, इफेक्ट्स में जाना है, क्लिक ऑन पार्टिकल एंड उसको ले आओ यहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर के ऊपर. थोड़ा नीचे ड्रैग कर दो, कहीं पे भी ले आओ मतलब. ठीक है, ये पार्टिकल्स अपन बना सकते हैं इसके अंदर. अब मुझे क्या करना है, पार्टिकल्स को एडिट करना होगा. सो पार्टिकल्स, हाँ जी एग्जैक्टली. तो अब मुझे पार्टिकल के अंदर एमिटर होता है. एक एमिटर नाम से समझ आ रहा है, इट्स बेसिकली अ थिंग दैट एमिट समथिंग, कुछ निकाल रहा है बेसिकली एमिट करना. एमिटर को एडिट करेंगे अपन, एक नया टैब खुलेगा. मुझे ये पिंकिश चीज़ नहीं चाहिए. यहाँ पे ये बटन है एक अपने एमिटर का, इसको क्लिक करो, क्लिक ऑन टेक्सचर एंड इसको अपना पार्टिकल कर दो ताकि वी कैन सी अ वाइट कलर का समथिंग, वाइट कलर के पार्टिकल्स. अब यार थोड़ी सेटिंग्स इसके अंदर अपन को करनी पड़ेंगी, तो आई विल टेल यू द सेटिंग्स क्या क्या हैं, उस हिसाब से जस्ट चेंज दोस. ऊपर कुछ नहीं चेंज करना, पोजीशन शुड बी सेम, सारा कुछ शुड बी सेम ऊपर का. In the properties, just set total particles as 50, emission rate as 25 maybe, indicative, ताकि थोड़ा अच्छे लगे particles basically. Start size जो भी तुम्हें रखना है 50 is good, end size जो भी तुम्हें रखना है. अब यार तुम कहोगे tilt का साइन क्यों बना हुआ है, ये साइन क्यों बना हुआ है यहाँ पे. So it is to add randomization to your particles. So if I put a value as 10, so what it will do is here it will say to Buildbox ki make some particles of size 50 plus minus 10. यार 50 के अंदर प्लस 10 हो सकता है, 50 में प्लस माइनस 10 हो सकता है, 50 में प्लस 1 प्लस 2 ऐसे करके रैंडमाइजेशन हो सकता है. तो एनीथिंग बिटवीन 40 to 60 पार्टिकल साइज जनरेट होंगे. सिमिलरली एंड साइज कैन बी डिफॉल्ट रख सकते हो या बड़े कर दो इनको, पार्टिकल्स को 60 कर दो विथ प्लस माइनस अगेन 10. सो पार्टिकल साइज छोटा स्टार्ट हो रहा है, दे आर इंक्रीजिंग टू 60. उसके बाद जस्ट कीप ऑल दोज एज 0 0 0. पार्टिकल स्पीड इसको थोड़ा बढ़ा दो, अगेन 70 एंड प्लस माइनस यू कैन कीप इट एज 20. एंगल इट कैन बी 90 प्लस माइनस 10 एंड लाइफ ऑफ पार्टिकल कितना चलना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पार्टिकल, कि कितने टाइम तक अलाइव रहेगा वो. लेट्स कीप इट एट 1.5 विद प्लस माइनस 0.25 0.25. ठीक है, क्लियर ये चीज. बढ़िया. अब बस एग्जिट कर दो, अगेन एग्जिट कर दो. अब अगर आई सी माई बिल्ड बॉक्स तो यू कैन सी यार पार्टिकल्स आ गए अब बहुत सारे. थोड़ा अब लग रहा है कि यार रॉकेट चल रहा है, कुछ है. यू कैन एडिट दिस पार्टिकल्स एज यू वांट, उसका कोई दिक्कत नहीं है. मे बी थोड़ा बड़ा कर दो पार्टिकल साइज, अभी काफ़ी छोटे लग रहे हैं. स्टार्ट साइज लेट्स कीप इट एट 100 कर दो एंड इसको 120 कर दो ताकि थोड़े बड़े बड़े लगे पार्टिकल्स. और तो नाउ अगर देखें अपन तो लुकिंग बेटर आई गेस. So you can modify the properties as you want and the thing will be like that only. तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है यार मुझे मेरा गेम. कैसा लगा अभी तक?
बताओ यार। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको? क्लियर हुआ ना ये? हाँ हाँ वो हाँ जी। बढ़िया। हाँ ठीक जी है, भैया। ओके मैडम। तो यार अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा गेम को और वो बनाते हैं, अच्छा सा यूनिक सा। एक नया सीन ऐड करो, सीन 5 नाम दे देते हैं इसको, एम्प्टी सीन रखते हैं। लेट्स कीप इट, डिस्टेंस इसका रखते हैं अपन 600, सब कांस्टेंट ही रहेगा अपना, 600 डिस्टेंस रखते हैं। एंड यार अब तुम्हें दिख रहा होगा देयर इज दिस ब्लैक होल अपने पास। लेट्स ऐड दिस ब्लैक होल, लेट्स ऐड इट एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करो ब्लैक होल को एक बार। काफ़ी बड़ा सारा है ब्लैक होल, साइज इसका रिड्यूस कर दो, कितना करेंगे 0.1 कर दो, 0.1 इज ठीक है। लेट्स कीप द ब्लैक होल एज 0.5। यहाँ पे एक ब्लैक होल डाल दो कहीं पे भी, यहाँ पे रख दिया। इसकी एक कॉपी बनाओ, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी बनाई और यहाँ पे डाल दिया इसको। ठीक है, इसके उसके बाद दो, प्लेटफॉर्म हटा देने हैं। हाँ इस सीन में प्लेटफॉर्म हटा दो, इसको एज अ मतलब इसको ब्लैक होल को डाल दो एक बार बस। प्लेटफॉर्म हटा दो इस सीन में और सिर्फ ब्लैक होल रहने दो। सो आई एडेड 2 ब्लैक होल्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ब्लैक होल का क्या होता है? चलो ब्लैक होल नहीं, वॉर्म होल का क्या मतलब होता है? एक जगह से निकलेगा रिलेटेड दूसरे टू से टाइम पहुंचेगा, एक हाँ से जी, पहुंचे, एक से एक जगह एक से जाएंगे जगह से और फिर दूसरे दूसरी से जगह चला निकलेंगे। जाते हैं, फास्ट एग्जैक्टली। ट्रैवल। एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से निकलेगा। तो वही लॉजिक अपन ने अपने स्पेस गेम में करना है कि यार मेरा रॉकेट अगर इस साइड से जा रहा है तो वो इस साइड से निकले। तो यार तुम कहोगे कि यार ऐसे बिना इनको टच करे भी तो जा सकता है, तो चलो तुम्हारी बात मान ली। आई ऐड अ प्लेटफॉर्म है, क्या जा ही नहीं सकता तू अब आगे? क्या बोलते हो? 0.5 0.5 ऐड करो। थोड़ा भी रैंडम सा गेम है ये, खैर चलो बहुत कम डिस्टेंस है तो जा ही नहीं सकता ये करेक्टर आगे अपना। तो इसलिए आई नीड टू यूज दिस ब्लैक होल वाली थिंग सो दैट माई करेक्टर कैन मूव फॉरवर्ड। अब यार कैसे इसको कोड करें, क्योंकि अगर इफ आई यूज दिस अभी ऐसे, कहाँ गया अपना, ऐसे आया, कुछ हो नहीं रहा, एक तरफ जा तो रहा है पर दूसरी तरफ से निकला नहीं वो, और डिस्ट्रॉय हो गया गेम अपना। तो अपन को क्या करना है यार, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड लॉजिक इन बिल्ड बॉक्स। प्री-मेड लॉजिक्स हैं बिल्ड बॉक्स में दैट यू कैन यूज टू add some creativity in your game. There is this portal वाला thing. Portal is basically एक तरफ से तुम जाओगे दूसरी तरफ से निकलोगे। तो पोर्टल को ड्रैग करो अपने वॉर्म होल के ऊपर, 2 पोर्टल्स को ड्रैग करो, एक को फर्स्ट वाले पे, एक को सेकंड वाले पे। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो एंड लेट्स कीप ग्रुप आईडी एज 0, कीप इट एज अ सिंगल यूज, डिलीट इनपुट ऑब्जेक्ट, कि यार मतलब जो इधर से जा रहा है उसको डिलीट कर दो एंड एक बार ही यूज कर सकता है इसको। एंड सर्च रेडियस है 600 पिक्सल की, 600 पिक्सल्स के अराउंड कुछ भी अगर दिखता है, पिक्सल्स नहीं होते इसमें, कुछ और होता है, बट 600 डायमीटर के अराउंड जो दिखता है, 600 रेडियस के अराउंड जो दिखता है उसको अपने अंदर ले लो, खींच लो। एंड दूसरी तरफ है अपना दूसरा वाला ब्लैक होल। ग्रुप आईडी सेम रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो इसको, इसकी भी ग्रुप आईडी 0 है, इसकी भी ग्रुप आईडी कीप इट एज 0। इसके अंदर डिलीट इनपुट ऑब्जेक्ट टिक रहने तो कोई बात नहीं, सिंगल यूज ओके, एंड एग्जिट ओनली। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट वांट कि यार इस ऑब्जेक्ट मतलब इस वाले वॉर्म होल से कोई अंदर घुसे और पीछे की तरफ निकले। आई डोंट वांट दैट, सो आई वांट दिस ब्लैक होल टू बी एन एग्जिट ओनली एंड दिस वन विल बी एंट्री वाला। क्लियर ये चीज़? यार अपन ने वॉर्म होल बनाया एंड उनको पोर्टल डाल दिया उन दोनों के ऊपर। अब इफ आई प्ले द गेम, होप सो जल्दी आ जाए। अब मैं इधर गया, सी इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। पोजीशन ठीक है, लेट्स कीप द स्केल एज 2 एंड 2, अगेन स्केल एज 2 एंड जाना चाहिए, अभी भी नहीं चल रहा, इसमें घुस ही नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाते हैं, अब चलेगा शायद।
वर्ड क्या हो गया ये? ठीक तो है। ठीक है, तो कम ही रखते हैं साइज एंड अपना ब्लैक होल। हाँ जी भैया मेरे में वो पोर्टल से टेलीपोर्ट तो हो रहा है लेकिन निकलते ही वो साइज बड़ा हो जा रहा है कैरेक्टर का। हाँ, तो समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। सही करते हैं अभी, चलो तो थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करते हैं। अब चल रहा है ना। तो यार क्या दिक्कत है, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज बिकॉज अपन ने पोर्टल का साइज स्केल कर दिया था। यार स्केल मैंने पहले 1 अगर 1 की जगह मैं 2 कर दूँ इसको स्केल को, तो द साइज ऑफ माई ऑब्जेक्ट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। अगर 1 को मैंने 2 कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 कर दिया, एंड इफ आई प्ले दिस सीन नाउ, अगर साइज छोटा जा रहा है तो इट विल बड़ा होके बाहर निकलेगा बेसिकली। आ जा यार, आ गया। तो देखो बड़ा हो गया अपना ये पोर्टल। तो आई डोंट वांट दैट, तो उसके लिए मैं पोर्टल साइज अपना 1 ही रखूँगा। तो जस्ट डू वन थिंग, अपना इनको ब्लैक होल्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर नो कोलाइड कर देना। नो कोलाइड एंड नो डिस्ट्रॉय। सिमिलरली नो कोलाइड एंड नो डिस्ट्रॉय। ऑल्सो साइज ऑफ आर अपना पोर्टल जो है, सॉरी सर्च रेडियस ऑफ अ पोर्टल, इट शुड बी थोड़ा इंक्रीज कर दो ताकि कोई दिक्कत ना आए। मैंने 1200 कर दिया है, सिमिलरली इसका भी 1200 कर दिया है, ताकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे पोर्टल को एक्सेस करने के अंदर बेसिकली। तो अगर मैं अब देखूँ अपना गेम चलाऊँ, आई प्ले द गेम नाउ, अब ठीक चल रहा है बिल्कुल, है ना। गेम यहाँ गया, दिक्कत हो गई। तो आई समझ ये चीज़। एंड चल रहा है सबका ये। हाँ अपना कोलिजन रेट मतलब सर्च रेडियस कम था इसलिए दिक्कत हुई। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं अपन। हाँ, ये हो गया यार अपना पोर्टल्स वाली चीज़ कि अब पोर्टल के थ्रू अपन एक तरफ से एंट्री ले रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। अब यार आई वांट कि यहाँ पे तुम देखो स्टैटिक हैं अपने ये प्लेटफॉर्म्स। आई वांट कि यार ये मूव करें, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गए। चलो करते हैं वो चीज़, एक काम करते हैं। चलो आई कॉपी द सीन 1, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड इसको ड्रैग करके मैं आगे ले आया सीन 5 के आगे, एंड नाम इसका मैंने कर दिया 6। ठीक है, एक नया सीन बनाया अपन ने सीन 6 करके, जो कि सीन 1 का कॉपी था। अब यार मुझे क्या करना है, आई वांट दीज टू प्लेटफॉर्म टू मूव, मतलब थोड़ा शेकी सा होना चाहिए। शेकी इन द सेंस कि यार टफ होना चाहिए गेम में, और कुछ नहीं। तो यार अगेन देयर इज दिस लॉजिक वाली थिंग इन बिल्डबॉक्स। लॉजिक के अंदर वी हैव दिस पाथ। आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ पाथ ऑन टू माई ऑब्जेक्ट, एंड मैं कहूँगा कि भाई ये पाथ जो है इस ऑब्जेक्ट का, इट शुड मतलब ड्रैग करे मेरे प्लेटफॉर्म को टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड इतना ड्रैग करना चाहिए। जस्ट यूज योर माउस टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एंड अपना पाथ डिसाइड हो जाएगा, मतलब उसका इस ऑब्जेक्ट का पाथ बन जाएगा। अब यार इस पाथ को सिलेक्ट करना है एक बार। सर्च रेडियस 50 फाइन, स्पीड 50 फाइन, अट्रैक्टिव फोर्स 50 फाइन, कीप वेलोसिटी ठीक है, इमेज डायरेक्शन ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज नहीं करना। प्ले मोड को कीप इट एज पिंग पोंग। पिंग पोंग क्या होता है कि एक बार लेफ्ट गया तो दूसरी बार राइट आया, एक बार लेफ्ट दूसरी बार राइट, ऐसे करके होना चाहिए। एंड इन इफेक्टेड एसेट्स कीप इट एज एसेट्स, एंड कौन सा एसेट चाहिए अपन को, अपना प्लेटफॉर्म। तो यार ये मैं बोल रहा हूँ इसको कि भाई तुझे पाथ है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए, किसी कैरेक्टर पे नहीं, या किसी और ऑब्जेक्ट पे नहीं काम करेगा। तो अब अगेन मैं चाहता हूँ कि यही वाला पाथ जो है मेरा, सेम पाथ, इट शुड बी अप्लाइड टू दिस ऑब्जेक्ट एज वेल, अपना दूसरा वाला प्लेटफॉर्म एज वेल। तो आई Ctrl+C एंड Ctrl+V अगेन,
and move this thing onto here. Simple. कोई डाउट इसमें? अगर मैं इसको प्ले करता हूँ अब तो तुम देखोगे कि मूवमेंट वाला पाथ एक मिलेगा मुझे, थोड़ी देर हो सकता है, मिल नहीं रहा। ये आ गया ना। सेम ही रखे हैं मुझे। तो थोड़ा यहाँ रोटेट मूव करते हैं। लेट्स सी। हाँ, तो यार अभी तुम देख रहे हो कि यार स्पीड बहुत तेज है अपने इनकी पाथ की। गेम ही नहीं खेला जाता है, अरे बड़ा पाथ की स्पीड बहुत तेज है बेसिकली, और तो कुछ नहीं। तो अपन क्या करेंगे यार, जो पाथ की वेलोसिटी है, स्पीड है, इसको रिड्यूस कर देते हैं टू नॉमिनल वैल्यू में भी 20। मैंने 20 कर दिया। अब अगर अपन प्ले करते हैं ये गेम, अगर मिलता है पाथ अपन को, ये तो यार अब 20 की स्पीड से मूव हो रहा है ये, एंड गेम और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब थोड़ा और दिक्कत आएगा खेलने में। क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ जी। बस 9:30 हो चुके हैं अब। तो बन गया ना, बता तुम लोगों का ये गेम सा थोड़ा सा छोटू था? बन गया। बढ़िया। तो नाउ यार मैं तुम्हें रिसोर्सेज देता हूँ और काफ़ी सारे, जिससे तुम लोग और सीख सकते हो इस गेम डेवलपमेंट के बारे में। इट्स वेरी सिंपल। कुछ तुमको क्या 1.5 आवर लगे एंड यू हैव बिल्ड समथिंग गुड, जो कि तुम फ्लेक्स कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने। यार देख मैंने गेम बनाया। अब यार इसको पब्लिश कैसे करना एंड ऑल दैट काफ़ी टाइम लगेगा उसको बात करने में, तो वी कैन टॉक अबाउट इट एट सम लेटर टाइम। बट ठीक है, आई टेल यू हाउ टू पब्लिश इट टू मतलब विंडोज़ के लिए कैसे पब्लिश कर सकते हैं इसको, ताकि यू कैन गिव दिस गेम टू योर फ्रेंड एंड वो अपने विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसको खेल सकता है। तो क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन, मतलब पहले सेव कर दो अपना गेम, कंट्रोल एस दबा के, यहाँ पे भी सेव करना है स्पेस गेम के नाम पे सेव, स्पेस गेम वर्कशॉप से पहले सेव, थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया। अब तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यार। अगर इफ़ यू नो iOS और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड iOS के लिए एक्सपोर्ट करो एंड यू कैन रन द एप्लीकेशन यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सपोर्ट, जो भी तुम्हें सूटेबल है। अगर तुम्हारे पास macOS है तो यूज़ OXS टू एक्सपोर्ट। अगर विंडोज़ है लाइक इन माई केस, तो आई यूज़ विंडो EXE टू एक्सपोर्ट इट। कंटिन्यू करो एंड इट विल एक्सपोर्ट। ये कहीं पे गया किसी फोल्डर में। इफ आई ओपन दैट फोल्डर, इसमें बंडल आईडी पूछ रहा है कुछ। बंडल आईडी कीप इट एज डिफॉल्ट। अगर कुछ कह रहे हैं कि ज़्यादा, मतलब कुछ कह ही रहा है, तो जो एक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, गो टू सेटिंग्स एंड एंड्रॉयड iOS के अंदर बंडल आईडी कुछ भी ऐड कर दो, लाइक abc.com या कुछ भी। सेम विंडोज़ के लिए भी। और किस टाइप से सेव करना है इसे? ये जब सेव करोगे तुम सेव पे क्लिक करते हो तो bbdoc के नाम से सेव होगा, मतलब सेव टाइप जो होगा bbdoc होगा। हाँ, bbdoc के टाइप से होगा। तो जैसा कि तुमको मैंने दिखाया कि यार मैंने इसको विंडोज़ के लिए एक्सपोर्ट किया। अभी विंडोज़ के लिए एक्सपोर्ट हुआ विंडो 32 EXE। इफ़ आई क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ज़िंगी ज़ांगी एप्लीकेशन है, if I click here, I can play it on my Windows का machine built on BuildBox। लोड होगा पहले थोड़ा, हो गया लोड। I'll click on start and the game is here। तुम कहोगे यार पहले तो बड़ा फास्ट चल रहा था, अब एक्सपोर्ट करने पे स्लो कैसे हो गया इतना?
तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। सो इसलिए यार मतलब जब भी एक्सपोर्ट कर मतलब जब भी यू डेवलप अ गेम और समथिंग, रेगुलरली इसको एक्सपोर्ट करते रहना पड़ेगा टू आवर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म, ताकि वी कैन मॉडिफाई द स्पीड एंड थिंग्स अकॉर्डिंगली। ये स्क्रीन शेयर के कारण लैग हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर के कारण लैग हो रहा है या आपके में स्मूथ चल रहा है? नहीं लैग कर रहा है गेम, लैग कर रहा है। लैग इसलिए कर रहा है बिकॉज विंडोज़ की सेटिंग के अंदर मतलब वॉट एवर सेटिंग्स दैट वी यूज इन बिल्ड बॉक्स, अगर मैं बिल्ड बॉक्स के थ्रू प्ले करूँगा तो ये बहुत स्मूथ चल रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, है ना? हाँ, स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड भी ज़्यादा है। मैंने एक्सपोर्ट किया है, इसमें पोर्टल वाला लेवल आया ही नहीं 5 में। आएगा, थोड़ा प्ले करो आएगा, काफ़ी सारे लेवल्स हैं ना इसलिए। वो में भी रैंडमाइज हो जाता होगा। एग्जैक्टली, रैंडमाइज। जितनी देर आपने खेला उतनी देर ही खेला मैंने। स्टिल रैंडम होता है ना, कभी कोई लेवल मैंने भी ट्राई करा था, अभी उसे टाइम लगा था पोर्टल को आने में। बंडल आईडी में पूछ रहा, बंडल आईडी डाल ली है, कैंसिल बंडल आईडी कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। अगर कह रहा है ज़रूरी है डालने को तो कुछ भी डाल दो यार, जस्ट गिव अ रैंडम नेम, com.company. कुछ भी डाल दो ऐसे करके, ठीक है। एंड बस यार एज सिंपल एज दैट। अगर देखो विंडोज़ के ऊपर मैंने एक्सपोर्ट किया तो थोड़ा स्लो हुआ ये गेम, सो आई नीड टू मॉडिफाई माई सेटिंग्स अकॉर्डिंगली ताकि विंडोज़ पे ये स्मूथ चले। अभी जैसे लैग कर रहा है ये, आई कैन फील लैग हो रहा है गेम, तो आई नीड टू मॉडिफाई माई सेटिंग्स अकॉर्डिंगली ताकि ये लैग ना करे बिल्कुल भी। और उसको सेव कहाँ पे करूँगा फिर एक्सपोर्ट करके? कहीं पे भी कर दो सर, जहाँ पे भी करना है। सो यार अब आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन लेट मी नो। अगर सेटिंग्स चेंज करेंगे, हाँ जी, अगर सेटिंग्स चेंज करेंगे तो वो गेम में अपने आप हो जाएगी या दूसरा? नहीं, वापस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वापस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके। अब यार इफ यू टॉक अबाउट ट्यूटोरियल्स एंड ऑल दैट स्टफ, सिंपल सा बिल्ड बॉक्स की वेबसाइट पे दे हैव अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब चैनल है इनका, यू कैन फॉलो दैट फॉर ट्यूटोरियल्स एंड मजे आ जाएंगे बस। थैंक यू। ठीक है, अभी एक चीज़ और, वन मोर थिंग, जो भी यहाँ पे हैं, सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ ACM, अगर ACM क्लब के मेंबर हो तुम या कुछ भी है, सो विल बी शेयरिंग अ गूगल फॉर्म और समथिंग फॉर योर अटेंडेंस एज वेल एज फॉर योर फीडबैक ऑन दिस वर्कशॉप। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ गुड फीडबैक। इस वर्कशॉप का पार्ट 2। मेरा तो गेम ही नहीं चल रहा, बिल्ड बॉक्स ओपन हो जाता है। एक्सपोर्ट करना पहले उसको, एक्सपोर्ट करके सेव किया था मैंने, लेकिन चला। तो दिक्कत आ रही होगी, सेव करके देखना एक बार। हर्षित अपना फीडबैक फॉर्म एंड अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दो एक बार। भैया कर दिया ऑलरेडी। कर दिया। ठीक है, तो वो फिल करोगे तभी तुम्हें अटेंडेंस मिलेगी एंड सो कॉल्ड पॉइंट्स मिलेंगे सेशन के, जो भी है। हाँ जी, बोलो। एनी डाउट्स, एनीथिंग, कुछ भी है लेट मी नो। कैसा लगा, कुछ फीडबैक?